Our today's class is for 12th. As you know, we are learning subject geology. We have started the next unit, that is interior of the earth. In this topic, we have discussed that one of the layer of the interior of the earth, that is crust, in the previous class. Now in this class we will try to discuss the mantle part or mantle layer of the earth. So as you know, our earth has been divided into three different layers, that is crust, then the middle part is known as mantle, and the innermost part of the earth is known as core. So in previous class we have discussed the crust, which is 30 to 80 kilometers thick, and the discontinuity or the border which separates the crust from the mantle, that is known as Moho discontinuity. So above Moho discontinuity is the layer crust and below it is the mantle. So and the distance from the thickness of the crust is 80 kilometers, and from 80 kilometers to 2900 kilometers is the thickness of the middle part, that is the mantle. So we know that during the eruption of volcano, before that the seismic waves are generated. As you know, the seismic wave velocity increases rapidly in the mantle part of the earth due to the density of this layer. The density of this layer in the especially in the upper layer is 3.3, where it increases when we move to the lower mantle layer. The density becomes 5.5, so the density becomes more in the lower mantle. Average mineral composition of this upper mantle is peridotite. Peridotite is a type of rock which contains less than 45% silica. In the lower mantle, you know, density increases 5.5 into 10 raised to power 3 kilogram per metric cube. The upper mantle consists of the important zone, that is asthenosphere. Asthenosphere is a zone which is within the upper mantle part. This zone provides lava for oceanic eruptions. So this zone, asthenosphere, provides volcanic material or lava for oceanic eruptions. Those volcanic eruptions which erupts in the oceans, actually the lava comes deep from the layer asthenosphere. Asthenosphere is located, as you know, it is located within this layer, and in this zone, or we can say in the asthenosphere, the velocity of S waves, that is secondary waves, decreases, thereby indicating that this zone consists of partly of molten rocks. As you know, S waves travel only through solids. When they enter into the molten rocks, their velocity gets decreased. So this indicates that, or we can say it is believed that the plastic material of asthenosphere moves and carries along to the lithosphere plate. The solid portion of earth, as you know, that above the asthenosphere is crust, that is also lithosphere, which includes lithosphere. Actually, this lithosphere covers crust part,
This lithosphere also covers some part of mantle. So up to 50 kilometers from the crust, when we move 50 kilometers, the zone asthenosphere starts, which is a layer of upper mantle, and this zone contains molten rocks, and it carries the plastic material to this asthenosphere, this lithosphere. This lithosphere basically covers up to 100-kilometer distance starting from the surface of the earth to deep inside into the earth's structure. So for your easy understanding, I will try to repeat so that you can get it understood. हमने पहले क्रस्ट पिछले क्लास में क्रस्ट लेयर के बारे में जानकारी हासिल की है। आज हम दूसरे लेयर, जिसको हम अर्थ का मिडल लेयर, यानी कि हमारे जियोलॉजिस्ट्स ने ज़मीन को 3 हिस्सों में तकसीम किया है, 3 लेयर्स में, क्रस्ट, मेंटल और कोर में। जो क्रस्ट पार्ट है उसको हमने कवर किया है। आज हम मेंटल के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। मेंटल पार्ट को अलग करने वाला बॉर्डर जो है उसको हमें मोहो डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। मोहो डिसकंटिन्यूटी से जब हम नीचे जाएंगे, 700 किलोमीटर का सफर जब तय करेंगे तो हमारा अपर मेंटल कवर होगा। जब हम 700 किलोमीटर से नीचे जाएंगे, 2900 किलोमीटर तक का सफर जमीन के अंदर करेंगे, तो हमें मेंटल पार्ट का सफर जो है मुकम्मल हो जाएगा। इन अदर वर्ड्स हम कहेंगे 80 किलोमीटर से लेके 2900 किलोमीटर तक जो फैसला डिस्टेंस होगी वो थिकनेस होगी मेंटल पार्ट की। मेंटल पार्ट को दो हिस्सों में बराबर नहीं, सॉरी, 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, जिसको अपर मेंटल और लोअर मेंटल के नाम से डिवाइड किया गया है। अपर मेंटल के अपने अलग फीचर्स है, लोअर मेंटल के अलग फीचर्स। अपर मेंटल में पेरिडोटाइट रॉक्स है। पेरिडोटाइट ऐसे रॉक्स है जिनकी परसेंटेज लेस देन 45 सिलिका परसेंटेज है, लेस देन 45 सिलिका परसेंटेज है। ऐसे रॉक्स को पेरिडाइट कहते हैं। इसमें भी सिलिका और मैग्नीशियम होता है। यहाँ मैग्नीशियम, लोअर मेंटल में मैग्नीशियम और आयरन सिलिकेट्स होते हैं। यहाँ पे अगर टेम्परेचर की बात करेंगे, यहाँ 0 से स्टार्ट होगा, लेकिन मेंटल में आपको 870 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मिलेगा। जबकि अपर मेंटल में आप डेंसिटी 3.3 होगी, और जब लोअर मेंटल में जाएंगे तो डेंसिटी हमारी 5.5 होगी। मैंने आपको बताया है एवरेज मिनरल कंपोजिशन यहाँ पे अपर मेंटल में पेरिडोटाइट होगा। लोअर मेंटल में ये जो डेंसिटी मैंने 5.5 बताया है, ये इंक्रीज होती जाएगी। अगर इसको मल्टीप्लाई 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब देंगे, वो आगे आगे इंक्रीज होती रहेगी। अपर मेंटल में एक इंपॉर्टेंट जोन है जिसको हम एस्थनोस्फीयर कहते हैं। एस्थनोस्फीयर ऐसा जोन है, ये जोन वॉल्केनिक एरप्शंस, जो ओशियनिक वॉल्केनिक एरप्शंस है, उनको ये लावा प्रोवाइड करता है। यानी यहाँ से ही लावा निकलता है एस्थनोस्फीयर से, और वो ओशियनिक वॉल्केनिक एरप्शन के लिए काम आता है, वहां से निकलता है। इस जोन में जो एस वेव्स की वेलोसिटी होती है वो कम हो जाती है। लेकिन ओवरऑल में अगर हम मेंटल की बात करेंगे, मेंटल में सिस्मिक वेव्स की वेलोसिटी बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है, लेकिन इस एटमॉस्फेयर में एस वेव्स की वेलोसिटी कम हो जाती है। इस चीज से हमें यह इंडिकेट होता है कि एटमॉस्फेयर में जो प्लास्टिक मटेरियल है वो कहाँ मूव करता है, आगे लिथोस्फीयर में, क्योंकि यहाँ पे मॉल्टन रॉक्स होते हैं।
और इनसे हमें ये चीज़ यकीन हो गया है कि यहाँ से जो प्लास्टिक मटेरियल है वो एस्ट्रोस्फीयर से चला जाता है फिर ऊपर के लेयर में लिथोस्फीयर। एज यू नो एस्ट्रोस्फीयर के ऊपर सॉलिड लेयर, एस्ट्रोस्फीयर जो अब मोल्टन रॉक मटेरियल है, इसके ऊपर लिथोस्फीयर है जो क्रस्ट पॉट में भी इंक्लूड इसमें हो जाता है। उसके ऊपर एग्जिस्टिंग अबो द पोर्शन, सॉलिड पोर्शन, दैट इज लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर में पार्ट अपर मेंटल का भी कुछ आता है, क्योंकि लिथोस्फीयर तकरीबन सरफेस से लेके जब हम मोटाई इसकी है 100 किलोमीटर, इसी 100 किलोमीटर के अंदर अंदर एस्ट्रोस्फीयर आता है। यानी 80 से जब हमारा जो एस्ट्रोस्फीयर वो वहीं पे हमें मिलता है विद इन 100 किलोमीटर। फिर लेकिन ये अपर मेंटल भी इसी में आता है। अपर मेंटल 80 किलोमीटर से स्टार्ट हो, 80 अपर मेंटल और लोअर मेंटल के दरमियान एक ट्रांजिशन जोन जिसको हम रेपिटेटिव डिस्कंटिन्यूटी कहते हैं, या हम कहेंगे अपर मेंटल और लोअर मेंटल के दरमियान एक बॉर्डर आता है जिसको हम रेपिटिव डिस्कंटिन्यूटी कहते हैं। और अपर मेंटल से जब एस्ट्रोस्फीयर खत्म हो जाता है तो बी जो नीचे की ओर जब हम जाएंगे 2900 किलोमीटर की मोटाई तक जब हम नीचे जाएंगे तो हमें और एक लेयर मेसोस्फीयर मिलेगा। एस्ट्रोस्फीयर के नीचे में ऊपर जो लिथोस्फीयर आता है सॉलिड, लेकिन एस्ट्रोस्फीयर के नीचे मेसोस्फीयर आता है जो 2900 किलोमीटर तक जाता है। और जब मेंटल और इस कोर को अलग करने वाली जो डिसकंटिन्यूटी है वो गटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, उसको हम गटन, या दूसरे लफ्जों में जो बॉर्डर है या ट्रांजिशन जोन है उसको हम गटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। इसके बाद नीचे फिर कोर पार्ट यानी कोर लेयर जमीन का आता है। हमने यहाँ पे कोशिश की है बीच वाला लेयर जो जमीन का मेंटल है, पहले क्रस्ट फिर बीच में मेंटल, यही हम आज कवर कर रहे थे इस क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम कोर को जानने की कोशिश करेंगे। सो ये एक छोटी मोटी इंफॉर्मेशन थी मेंटल के बारे में जो आपको जहन नशीन करनी पड़ेगी। मैंने वो एक छोटी कोशिश की है आपको समझाने की। आई होप दैट यू मे हैव बीन गॉट दिस mental, what is the information regarding the mental part of the